Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you? You are listening to the voice of Dr. Muhammad Faisal Fareed. In the first lecture, we talked about human resource management in general context. Today, we are discussing human resource management in the context of the topics covered in this lecture are concept of human resource management in education, few models of human resource management, and the challenges of human resource management in education. As you people know that every education system at every level depends heavily on the human resources for execution of its program. Teachers are the critical resources for effective implementation and realization of educational policies and objectives at the practical level of the classroom. It is the teacher who ultimately interprets and implements policy as represented in the school curriculum, which is designed to actualize educational goals. Maintaining and improving educational standard is only possible through teachers. Teachers, therefore, are the most indispensable entity in any organization surrounding education. They are the greatest aid to learning. Human resource management in education essentially is concerned with three major issues, namely assessing the need for staff, satisfying the need for staff, and maintaining and improving the staff. Human resource management in education is a set of organizational activities directed at attracting, developing, and maintaining an effective workforce. It concerns the recruitment, staffing, welfare, maintenance, training, and retraining, placement, promotion, motivation, relationship, compensation or rewards, transfer, and discipline of staff. It is a process of motivating workers to maximize their performance in order to obtain maximum output starting from the day they are recruited. Now, human resource in education is a very important concept because effective human resource management is the key to the provision of high quality education experiences and that education organizations depend for their success on the quality, commitment and performance of people who work there. जाहिर सी बात है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उसमें काम करने वाले लोगों पर डिपेंड करती है जब हम बात करते हैं एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट की तो यहाँ पर सबसे अहम बात आपका टीचर है अगर उस्ताद अच्छा है और वो सही जगह पर ट्रेन होकर आया है वो मोटिवेटेड है और वो इस बात पे खुश है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन फायदे में है क्योंकि वो एक ह्यूमन कैपिटल है और जब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की तो ह्यूमन कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड when people acquire desired skills or knowledge. ये तब प्रोड्यूस होता है जब लोग वो डिजायर्ड स्किल्स या नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं जिसके लिए उन्नति किया गया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट in education is a set of practices and methods of integrating and maintaining the teaching staff in the educational organization
so that they can achieve their purpose and as well as meet the goals for which they were established. Why are educational organizations established? आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? किसी भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उनमें से एक ऑब्जेक्टिव इस बात की तरफ निशानदेही करता है कि वो फ्यूचर के वर्कफोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, जिनके नाम आपको याद होंगे, जिनमें प्लानिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, ensuring safety, determining compensation packages, and smoothing career path of personnel working in the organization. ये वो सारे काम हैं जो ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करता है। लेकिन जब हम एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो जो HR मैनेजर्स होते हैं एजुकेशन में, वो इन सारे कामों के अलावा भी बेशुमार काम सर अंजाम देते हैं। One can say that they perform certain unique and very different functions than other organizations. देखिए, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में बाकी रिसोर्सेज के मुतालिक ज़्यादा बात होती है, लेकिन जब हम एजुकेशन में बात करते हैं तो एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन रिसोर्स एंड स्पेशली टीचर्स आर मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ देखिएगा, आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है कि एजुकेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्सेप्ट है या HR के लोग जो हैं उनको हम स्कूल प्रिंसिपल्स के तौर पे देखते हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स के तौर पे देखते हैं। जैसे अगर आप अपने इस डिपार्टमेंट को देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास डिवीजन ऑफ एजुकेशन में एक डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, फिर इसी तरह डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का हेड मौजूद है, फिर टीचर्स मौजूद हैं और आप स्टूडेंट्स मौजूद हैं। सो एजुकेशनल हायरार्की में आपको मुख्तलिफ ह्यूमन रिसोर्स नज़र आएगी। अब इनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जाहिर बात है, चीज़ों को मैनेज करना है, उनको नर्चर करना है, एजुकेट करना है, प्रिपेयर करना है। किस हवाले से? प्रोस्पेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि जो आज प्रिपेयर हो रहे हैं उन्होंने कल सोसाइटी को संभालना है। आप सब प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो फ्यूचर में टीचर्स बनेंगे। सो आपसे ये हम तवक्को कर सकते हैं कि आप इस मुल्क को बेहतर तरीके के साथ लीड कर सकेंगे। These prospective human resources are the students who will lead the country, society and family. किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार इस बात पर है कि वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स कितना अच्छा है। Prosperity of a country is largely determined by the quality of these resources. HR वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन सारे प्रोस्पेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए, so that they can become great persons of the country and society. Everyone is focusing on this thing that you are future of this country and you are the future workforce. So as we talk about this century's teaching and learning, so there has been an increased focus on 4 C's, जिसमें critical thinking है, communication skills है, collaboration है और creativity है।
देखिए वही लकीर के फकीर बन के काम करने का फायदा नहीं होगा। हमें नए आइडियाज चाहिए, हमें कोलैबोरेशन चाहिए लोगों की आपस में, ताकि वो ज़्यादा बेहतर हो, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल हो, ताकि वो अपनी बात को दूसरों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा सके, और हर चीज़ को वो क्रिटिकली थिंक करें, उसको एनालाइज करें। अब अगर तालीम का ये मकसद है तो जाहिर बात है इस तालीम को देने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और वो रिक्वायरमेंट है क्वालिटी टीचर्स की। अब तक हमने जो बात की है वो ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से की है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो एजुकेशन में है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसको देखते हुए हमें जो चीज़ सबसे अहम नज़र आई है वो ये है कि टीचर्स मैटर। किसी ने कहा था कि मोर कैन बी डन टू इम्प्रूव एजुकेशन by improving the effectiveness of teachers than by any other single factor. अब किसी भी टीचर के अंदर बेशुमार क्वालिटीज पाई जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी ये है कि वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस के अंदर इम्प्रूवमेंट लाए। और ये इम्प्रूवमेंट कहाँ से शुरू होगी? वो उस दिन से शुरू होगी जिस दिन आपने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था, यानी आपके एंट्री पॉइंट से। अगर आप जिस दिन इस कैंपस में, इस क्लास में एनरोल हुए थे, उस दिन से लेकर आज तक अगर आपके अंदर कोई वैल्यू ऐड हुई है एजुकेशन में, तो इसका मतलब ये है कि आप तरक्की की राह पे गामज़न हैं। अब एडेड वैल्यू इन एजुकेशन से हम क्या मुराद ले सकते हैं? It is the quantification of a student's progress during different stages of his her education. और ये मेजर कैसे होती है? ये मेजर होती है quantifying the input over output. अब इनपुट से मुराद है एंट्री पॉइंट, और आउटपुट स्कोर से मुराद है परफॉर्मेंस से। और हम इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं कि जब आप आए थे तब आपकी क्या पोजीशन थी, तब आपको क्या पता था, और एक प्रोसेस से गुजरने के बाद जब आज आप जिस स्टेज पे हैं तो आपकी प्रोग्रेस वहाँ क्या है। सो ये एक इनपुट और आउटपुट का प्रोसेस है। मिसाल के तौर पे आप एज अ रिसोर्स एक रॉ मटेरियल के तौर पे इस क्लास में एंटर हुए थे। टीचर्स ने अपनी एबिलिटी, स्किल्स और नॉलेज के साथ आपके अंदर रेडीनेस डेवलप की, आप तालीम की तरफ मुतवज्जो हुए, पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया फाइनेंशियल में और बाकी सारे मराहिल में। आप प्रोसेस में से गुजरे जो इनपुट के हवाले से थे। मिसाल के तौर पे आपके लिए अच्छे टीचर्स का बंदोबस्त किया गया, फिर उन्होंने आपको अच्छे तरीके के साथ पढ़ाया, और आउटपुट क्या आया? आउटपुट ये आया कि आपने कितना अचीव किया। सो इस वक्त आप अपने आप को अगर मुड़ के देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी इनपुट और आउटपुट आपको लेके जाती है। सो यहाँ तक तो हमारी डिस्कशन जो थी वो चल रही थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जो छोटा सा इंट्रोडक्शन सा था हम देख रहे थे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स की मॉडल्स के हवाले से, HRM के मॉडल्स के हवाले से। Models of HRM provide an analytical framework for studying human resource management. ये 5 नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं जो 21st सेंचुरी के लीडर्स हैं
organizations के they are expected to maximize and mobilize human creativity, skill and effort so that levels of achievement rise. Difference between institutions are reduced. Performance difference between social groups are reduced, and human capital contributes to economic success. जैसा कि आपको नामों से नज़र आ रहा है कि ये वो नाम हैं जो मुख्तलिफ अंदाज से यहाँ के लिटरेचर में आए हैं। मैनेजमेंट के लिटरेचर में बहुत सारी टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स है और इसकी टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज बिजनेस की फील्ड से यहाँ पे आई हैं। मॉडल जो है वो इस्तेमाल होता है थ्योरी के मानों में भी और अप्रोच, व्यू और सिस्टम के हिसाब से भी यूज़ होता है। अगर हम सिंपली अंदाज में डिफाइन करें तो मॉडल इज एनी मीन्स of simplifying a statement, proposition or hypothesis. Model can be simple statement, for example definitions, theories for study or application. Models can also be used to construct programs or systems. ये 5 नाम आप देख रहे हैं। हार्वर्ड मॉडल है, मैचिंग मॉडल है, कॉन्टेक्सचुअल मॉडल है, 5P मॉडल है, हार्ड एंड सॉफ्ट मॉडल है। बारी बारी हम इनको देखते हैं कुछ थोड़ी बहुत डिटेल के साथ। सबसे पहला हार्वर्ड मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। अब ये जो मॉडल है जिसको बियर एट ऑल 1984 में ये आया और इसको हार्वर्ड मॉडल भी कहते हैं। एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क है एंड इट कुड बी कंसिडर्ड एज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ अदर मॉडल्स। यानी जितने भी मॉडल्स आप इसके बाद देखेंगे इसको आप ब्रेन चाइल्ड कह सकते हैं बिकॉज बाकी सारे मॉडल्स इसी के इर्द गिर्द बेस करते हैं। अब इन्होंने ये जो बियर और उसके कोलीग्स थे इनका ये बिलीव था कि टॉप मैनेजर्स हैव हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी in developing policies and practices of human resource management in their organization. 6 components हैं जिनमें सबसे पहले सिचुएशन फैक्टर्स हैं। जाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेशुमार सिचुएशंस होती हैं और उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके इंटरेस्ट मैटर करते हैं। जैसे हम एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो आप एक स्टेक होल्डर की हैसियत से जहाँ बैठे हैं, टीचर्स एक स्टेक होल्डर हैं। इसी तरह से आप कुछ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पॉलिसी चॉइसेस होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको देखें तो जैसे हमारे यहाँ मुल्क में जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है उसमें आपकी रेगुलर क्लासेस फेस टू फेस तो नहीं हो रही हैं। एक नया तरीका है, आपके लिए भी नया है। सो ये एक पॉलिसी चॉइस थी। इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स के आउटकम्स हैं, फिर काम के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसमें इम्पोर्टेंट बात है फीडबैक लूप, जिसके ज़रिए से आउटपुट फ्लो जो है वो डायरेक्टली इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द स्टेक होल्डर्स आता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि विजन एंड फिलॉसफी शुड बी implemented in the organization and the human component is to be considered as strategic resource. विजन भी है कि जी हमने कहाँ तक जाना है, फिर कोई ना कोई पॉलिसी भी होती है, फिलॉसफी होती है उस काम के पीछे, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन ये सारे काम कौन करता है? ये सारे काम इंसान करते हैं। ये जो हार्वर्ड
बिजनेस स्कूल था, इन्होंने कोई तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है ना वो इनिशिएट किए थे इस एनालिटिकल फ्रेमवर्क के हवाले से। उनमें एक बात उन्होंने कही थी कि जो लाइन मैनेजर्स हैं दे हैव टू accept more responsibility for ensuring the alignment of competitive strategy and adhere to human resource management policies। यानी कि वो जो लाइन मैनेजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज़्यादा, ताकि वो कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी बना सकें और जो HRM की पॉलिसीज़ हैं उनको फोकस में रख सकें। जो दूसरा पॉइंट है वो इस बात की तरफ निशानदेही करता है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन फॉर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन अ मोर कोहेरेंट वे। इस मॉडल में आपने देखा होगा एलिमेंट्स हैं लाइक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का जिक्र है, म्यूचुअल कमिटमेंट है, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये टीम वर्क अप्रोच पे रिलाइज करता है जो आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक सॉफ्ट इम्प्रेशन देता। So we have the matching model of HRM. It was proposed by Fomburn in 1984 in Michigan School. Matching model ensures way to achieve the organizational objectives by applying 5 major functions of human resource management very effectively. You can see here in the picture on your left hand side is the selection. Then you see how human resource development, appraisal, rewards, and they all combine together to go for organizational effectiveness. Model emphasizes interrelationship among the 4 activities and their collective impact on organizational effectiveness. HR systems और organizational structures को इस तरह से मैनेज किया जाए कि वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी के मुताबिक अपने ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को अचीव कर सके। मिसाल के तौर पे the work and contribution of properly selected human resource has to be evaluated in using appropriate techniques. Some kinds of rewards have to be offered on the basis of the result of appraisal and the performance of employees. Normally आप देखते हैं कि लोगों को उनको काम के हवाले से उनको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, लेकिन कुछ रिवॉर्ड ऐसा भी होता है जो ज़रा बेहतर रिजल्ट की बुनियाद पे दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। इस मॉडल के तहत प्रोसेस क्या है, वो टोटली डिपेंडेंट है ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट पर, प्रोसीजर्स पर और प्रोग्राम्स पर जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सरंजाम दिए जाते हैं। It is believed that the whole of human resource management is a cyclic process which every function is interdependent, hence value of each function is very identical for achieving the organizational objectives. Next model we can see the contextual model of human resource management. It emphasizes the importance of environmental factors by including variables such as influence of social, institutional, and political forces that have been underestimated in other models. Previously, we have talked about situation models, but here in this model, environmental factors जो हैं उन पे ज़्यादा influence है। देखिए किसी भी सोसाइटी में जब कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन पर
सोशली इफेक्ट्स मौजूद होते हैं और किसी भी इंस्टीट्यूशन की ऊपर पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो भी अपना असर रखती हैं। कॉन्टेक्सचुअल अप्रोच वो ब्रॉडर है, ये इंटीग्रेटिंग द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम in the environment in which it is developed. A broader set of stakeholders is involved in the formulation and implementation of human resource strategies considered as a multiple stakeholder framework. यहाँ पर बहुत सारे stakeholders involve हो जाते हैं formulation of human resource strategies में। पिछले मॉडल्स में आपने देखा है कि वहाँ पर इतने सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन इस कॉन्टेक्सचुअल मॉडल जैसे कि नाम से जाहिर है किसी कॉन्टेक्स्ट में ये काम करता है, तो यहाँ पर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एक फ्रेमवर्क में आ जाते हैं और ये सारे इंटरनली और एक्सटर्नली एक्सर्ट करते हैं अपना इन्फ्लुएंस और उसके नतीजे में फिर पॉलिसीज जो भी पॉलिसी बनती है फिर उसमें उनका इन्फ्लुएंस मौजूद होता है। वैसे भी सक्सेसफुल मैनेजमेंट जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एंटरप्राइज की होती है उसमें बुनियादी तौर पर 3 फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करती है। उनमें पहला है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन, मनी, मटेरियल और मशीनरी। जब स्टेक होल्डर्स इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो फिर वो अपना इन्फ्लुएंस इन पर इस्तेमाल करते हैं और उनके नतीजे में फिर उस इन्फ्लुएंस की वजह से पॉलिसीज में चेंजिंग आती है। आपने रिसेंटली वो रिपोर्ट सुनी होंगी जो आटा, चीनी और इसी तरह से जो IPPs के हवाले से खबरों में आप सुन रहे होंगे, तो ये उन्हीं स्टेक होल्डर्स की वजह से ये सारी पॉलिसीज चेंज हुई कि चीनी की यहाँ कितनी ज़रूरत थी, कितनी एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी वगैरह वगैरह। सो फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई हैव गिवन दिस एग्जांपल। जी, तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन जो होती है रिसोर्सेज की, ये इट डिपेंड्स a great deal on the efficiency of people operating and handling the resources and the utilization of knowledge, capacity, skill and potentialities in them. अगर हम इस कॉन्टेक्सचुअल मॉडल को एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में ले जाएं तो आप जहन में ये लाइए कि अब एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो सकती थी। यानी आपकी यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन हो गई, फिर आपको इस ऑनलाइन कॉन्टेक्स्ट में लिया गया कि आपका वक्त कम से कम ज़ाया हो ताकि आप कुछ न कुछ साथ साथ पढ़ते रहें, इन टच रहें अपनी एजुकेशन के साथ और आप इस हवाले से इन चीज़ों को देखते रहें। तो बहुत सारे इसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे, जिसमें वर्दी वाइस चांसलर, हमारे हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसीज़ थी, फिर आपके डिवीज़न के और मुख्तलिफ जो प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, इन सब की मुशावरत शामिल थी। टीचर्स को ऑन बोर्ड लिया गया कि हम किस तरह से आप लोगों को आपका ये जो कीमती वक्त है इसको ज़ाया होने से हम तो ये 5 P's बनती हैं। 1992 में ये मॉडल आया था और ये हमें बताता है कि हाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑपरेट्स अंडर दीज 5 हेडिंग्स। फिलॉसफी, अब वैसे आपने शायद सुना हो कि व्हाट इज फिलॉसफी। बुनियादी तौर पे ये ग्रीक वर्ड्स हैं फिलो एंड सोफिया। लफ्जी तौर पर अगर हम इसका मतलब देखें तो इट इज लव ऑफ विजडम। यहाँ पर जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं वो लिखी हुई है कि स्टेटमेंट ऑफ हाउ द ऑर्गेनाइजेशन regards human resources, the role they play in the overall success of the business and how they should be treated and managed. तो ये फिलॉसफी है
उस ऑर्गेनाइजेशन की, और हर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट होती है। जैसे हर इंसान की फिलॉसफी डिफरेंट होती है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, इसी हिसाब से हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदाज से एक फिलोसफिकल स्टेटमेंट बनाती है कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे लेके चलेगी, वो ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो क्या रोल प्ले करेंगे उस पूरे बिजनेस की सक्सेस के हवाले से, और उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा और उनको फर्दरली कैसे मैनेज किया जाएगा। सो एक ये रिटन सॉर्ट ऑफ फिलॉसफी स्टेटमेंट होती है जिसको लेके तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन वर्कआउट होते हैं। पॉलिसीज अभी गाइडलाइंस होती हैं एक्शंस के हवाले से कि पीपल रिलेटेड बिजनेस इश्यूज जो हैं वो कैसे डेवलप होंगे, एचआर के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी प्रैक्टिसेस किस तरह की स्ट्रेटेजिक नीड्स पे होंगे। सो पॉलिसी गाइडलाइंस होती हैं कि जी हमने कैसे लोगों को लेके चलना है और फिर उस हिसाब से हम उनकी किस तरह से डेवलपमेंट कर सकेंगे। प्रोग्राम्स तो these are shaped by HR policies और ये कोऑर्डिनेटेड HR एफर्ट्स होती हैं, और ये किस लिए होती हैं, ये इनिशिएट और मैनेज करती हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज एफर्ट्स को जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस नीड्स के हवाले से वक्तन फवक्तन आपके सामने आती रहती हैं। किसी भी बिजनेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्रैक्टिसेस वो एक्टिविटीज़ हैं जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे होती हैं, यानी काम करते हुए जो प्रैक्टिस इस्तेमाल होती है। जैसे आप अपनी क्लास में देख लीजिए, पहले आप फेस टू फेस यानी टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होती थी, एक प्रैक्टिस वो चल रही थी। अब एक प्रैक्टिस ये है कि आप मटेरियल अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं और इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये एक ऑनलाइन प्रैक्टिस जो हमने शुरू की है ताकि आपको हम थोड़ा बहुत पढ़ा सकें, एंगेज रख सकें। सो इसमें लर्निंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ की रिलेशंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉयज़ के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के आपस में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोग होते हैं। सो देन कम्स द वर्ड प्रोसेसेस। These are the formal procedures and methods used to put HR strategic plan and policies into effect. यानी वो जो कागजों में लिखी हुई चीजें होती हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान एंड पॉलिसीज होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्रोसेसेस में से गुजारा जाता है। अगली जो मॉडल है वो डील करता है हार्ड एंड सॉफ्ट HRM मॉडल को। ये मॉडल बुनियादी तौर पे जो हार्ड मॉडल, ये 1989 में हार्ड एंड सॉफ्ट वर्जन्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से स्टोरी ने डिवाइन किए, और वो लिखता है कि हार्ड वन जो है वो एम्फेसाइज करते हैं किस चीज़ पे, quantitative, calculative and business strategic aspect of managing human resources in as rational a way as for any other economic factor। जैसे आप मशीन को इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके के साथ आप इंसानों को भी यूज करते हैं, और इसमें आप बहुत टाइट स्ट्रेटेजिक कंट्रोल रखते हैं। ये इकोनॉमिक मॉडल है इंसान के हवाले से। हार्ड मॉडल जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज को इकोनॉमिक रिसोर्सेज के तौर पे देखता है। जैसे हमने मशीन और मनी और बाकी चीज़ों की बात की है, तो यहाँ पर इंसान जो है वो ह्यूमन रिसोर्स को एक इकोनॉमिक रिसोर्स के तौर पे देखता है, लाइक न्यू टेक्नोलॉजी, या आप एक कमोडिटी के तौर पे देखते हैं। दूसरी तरफ जो सॉफ्ट वर्जन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो क्या करता है, वो ह्यूमन रिलेशंस की बात करता है। वो ह्यूमन रिसोर्सेज को
कमिटमेंट और कोहेजन के जरिए से कंट्रोल करने की बात करता है। इसमें कम्युनिकेशन है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है, यानी इंसान आपस में बातचीत के जरिए से एक दूसरे को मोटिवेट करके और एक दूसरे को लीड करके तो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ जो गोल्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ तक कुछ मॉडल्स पढ़े हैं जिनके हवाले से कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये मॉडल्स किस तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं। अब हम आज की इस लेक्चर के तीसरे हिस्से में हैं, कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एजुकेशन में फेस करते हैं। बारी बारी हम इनको लेके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटी रिक्रूटमेंट की। ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आप लोगों को रिक्रूट करते हैं और इस रिक्रूटमेंट में जो सबसे अहम बात आती है वो ये आती है कि आपने क्या क्वालिटी वाले लोगों को भर्ती किया है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के जो एजुकेशन में फंक्शंस हैं उनमें सबसे पहला काम आता है क्वालिटी रिक्रूटमेंट का, स्टाफ मेंटेनेंस का, स्टाफ के रिलेशंस का, फिर उनकी जो है वो डेवलपमेंट का आता है, तो जॉब परफॉर्मेंस रिवार्ड्स भी होते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो एजुकेशन में है, सबसे पहला और बुनियादी काम उसका है क्वालिटी रिक्रूटमेंट का। आफ्टर क्वालिटी रिक्रूटमेंट कम्स गुड वर्किंग कंडीशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट in education creates good working condition so that staff in school can achieve their purpose as well as meet the goals for which they were established. टीचिंग स्टाफ या कोई भी स्टाफ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मौजूद है उसको मोटिवेट किया जाता है ताकि वो अपने जो हाई परफॉर्मेंस लेवल है उस पे वो परफॉर्म करे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मरला आता है। मुख्तलिफ चेंज सिनेरियोज हैं जो इस वक्त दुनिया में मौजूद है, जैसे कि इस वक्त कोरोना सिचुएशन है, तो ये भी एक चेंज सिनेरियो है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है टैलेंट को रिटेन करना, यानी जिन लोगों को आप लोग रिक्रूट किया उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की, मोटिवेट की, ट्रेन किया, डेवलप किया, तो उनको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करें। जाहिर बात है जब लोग काम करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट होगी एंड यू हैव टू मैनेज दैट कॉन्फ्लिक्ट। देयर इज डाइवर्स वर्कफोर्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, especially due to technological advances. There are more challenges than in the previous days. जब लॉकडाउन हुआ और आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज प्रिपेयर करने की बारी आई तो हमारे लिए एज टीचर्स टेक्नोलॉजिकली बहुत सारे मसाइल थे। We have to come up with quality resources so that we can carry on our educational activities as an excellent level so that we can have a better effect. आप जानते हैं कि इस वक्त नॉलेज में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रोथ है और हर वक्त हर चीज़ आपके जहन पे नहीं होती।
ना आपको हर चीज़ हर वक्त याद होती है और ना ही आपके असातिज़ा कराम हर चीज़ को हर वक्त याद रख सकते हैं। मरहले में आप देखिए तो एक HRM का एक चैलेंज बैलेंस का है कि काम और आराम में बैलेंस पैदा किया जाए, बैलेंस इन वर्क लाइफ, so that when you are at work you are fully motivated to perform better way, and when you are enjoying your time you have human resource practices in education sector, प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट, यानी आप प्लान करते हैं, वैकेंसीज को देखते हैं कि भाई कितनी वैकेंसीज आपको इस वक्त रिक्वायर्ड हैं, तो आप उस हवाले से देखते हैं और फिर आप उनको प्लान करते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज। देखिए कैपिटल और टेक्नोलॉजी जो है वो आपको लिमिटेड रिजल्ट दे सकता है, लेकिन अगर आपके पास मोटिवेटेड, कॉम्पिटेंट और डिसिप्लिन्ड एम्प्लॉयज हैं तो वही आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर हो सकता है। लोगों में इंट्रिंसिक कैपेसिटी होती है डेवलप होने की। लोग ये चाहते हैं कि उन्हें इज्जत के साथ और डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जा सके। जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं लोगों को जॉब प्लेस के हवाले से, तो फिर आप उनको ओरिएंटेशन सेशन में से गुजारते हैं। मुख्तलिफ किस्म के ओरिएंटेशंस दी जाती हैं ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के माहौल के मुताबिक काम कर सके। फिर वक्त के साथ साथ लोगों को ट्रेन किया जाता है, उनको डेवलपमेंट के मौके फराहम किए जाते हैं, फिर कंपनसेशन है और रिवार्ड्स हैं। एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। काम करते हुए बाज़ दफ़ा आपको ग्रीवेंसेस भी पैदा हो जाते हैं, उन ग्रीवेंसेस को रिमूव करने का काम भी HRM के ज़िम्मे है। इसी तरीके से प्रमोशन और फिर एक वक्त आता है रिटायरमेंट का। आप अपने इस कैंपस में देखिए कि आपको पढ़ाने वालों में यंग एनर्जेटिक लोग भी मौजूद हैं और वो लोग भी हैं जो अपनी सर्विस के आखिरी हिस्से में हैं, यानी वो अपनी रिटायरमेंट के करीब हैं। आज के इस लेक्चर में हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा और फिर हमने कुछ मॉडल्स भी पढ़े, कुछ चैलेंजेस का जिक्र भी आया। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रा डिटेल से पढ़ें और इन दो छोटे छोटे क्वेश्चंस के कुछ पॉइंट्स बनाएं और भी सर्च कीजिए ताकि आपके पास मटेरियल हो और आप फिर जब ज़रूरत पड़े यानी एग्ज़ाम में तो आप उसमें बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। विशिंग यू very happy time for your future. Allah Hafiz. Thank you.